एक ऐसी आवाज जिसने आपकी लाइफ के एल्बम का साउंड ट्रैक बनकर आपका साथ दिया है। 1 2 एंड पर क्या आपने कभी सोचा है कि किशोर दा की आवाज आज के सिंगर्स के साथ कैसी सुनाई देगी? एक कॉलेज फेस्टिवल, उसकी तैयारी और सिंगर्स का टेक चेक। तो चलो फिर सुने एक और बार किशोर कुमार। Hi. Hi, Palak. Hello. I'm so sorry I couldn't be there. I really wanted कि मैं वहाँ पर रहूँ, but couldn't happen. I can't believe this is happening. This is like a dream come true. Oh my gosh. This feels like the biggest fangirl moment ever. Oh, thank you. मुझे याद है जब हम कोलकाता में थे, हम सोच रहे थे कि we want to become musicians and we didn't know how to. We would look up videos online on YouTube, and the first videos that we actually started to look up were your videos of you performing in the Royal Albert Hall. मैंने वो वीडियो अपने मम्मी पापा को दिखा के बोला था कि मम्मी एक दिन ना I wish कि हम भी ऐसे रॉयल एल्बर्ट हॉल में गा पाए, और वो सपना आज भी है. And you were the person who made us dream of something like that. Thank you so much. I also really admire your work, Nadi Sisters. That sounds bizarre. Absolutely bizarre to us because we've been your fan since forever. Yeah. Oh, that's really sweet of you. Thank you so much. Did you hear my Revive Kasme Wade track? It's beautiful. Oh my god. The way you've rendered it. Actually, if I have to define the word surreal in my life experiences, this was the moment. मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि जब भी किशोर दा रिकॉर्ड करते थे तब उनकी आवाज़ स्पीकर्स को चीर कर सुनाई देती थी. And the moment I entered the studio, it almost felt like speakers, वो atmosphere, वो machine, वो सब किशोर जी की आवाज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं. And honestly speaking, while I was singing on their mic, so I was pretending, closing my eyes कि किशोर जी मेरे साथ गा रहे हैं. And as an artist, you wait for those moments जो कि आप पूरी लाइफ के लिए चेरिश करने वाले हो. And this was that moment for me. It was a beautiful experience. So what are the changes that you've actually made to this iconic song? Yeah. सबसे यूनिक बात इस प्रोजेक्ट की यही है कि किसी भी गाने के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है. और अगर आप ये गाने को सुनेंगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक नई ट्रीटमेंट के साथ इस गाने को सुन रहे हैं. बिकॉज हाँ, नया साउंड है, हाँ, नया अरेंजमेंट है, लेकिन उसकी आत्मा वही है. ये मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी. हमने जैसे आपका गाना सुना, हमारे दिमाग में पहली बात ये आई कि it in no way felt like a recreation. Your voice seemed to fit in absolutely, like seamlessly. It was supposed to be there. It was supposed to be there. कसमे वादी song talks about undying love. It talks about commitment. It talks about promise. और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गाने वाली की आवाज़ में, अंदाज में वो conviction हो. I just wanted to be authentic to the message of the song. All of that वो छलक रहा था आपकी आवाज में. And your voice is like that. All of us as aspiring musicians have been inspired by Kishore sir's music in a big way. So what kind of a role has he played in your life? किशोर जी की सिंगिंग सागर के समान है. आप जितना बटोर लें, जितनी मोती बटोर लें उतनी कम है. मैंने बहुत सारे किशोर जी के गानों को सुन के बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखी हैं. आप अगर उनके संजीदगी भरे गाने ले लें, जो सीरियस गाने हैं, उनको जितनी सरलता से उन्होंने गाया है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई कठिन जगह ले रहे हैं. लिटरली ऐसा लगता है कि आप वो गाना देख रहे हैं. उसके रेंडिशन में इतनी एक्टिंग, इतना कैरेक्टर होता है. सो यहाँ पर जब मैं स्पेशली द सॉन्ग कसमे वादे गा रही थी, बिकॉज द सॉन्ग स्पीक्स ऑफ कमिटमेंट, इट स्पीक्स ऑफ प्रॉमिस. तो यूजुअली जितने भी कमिटमेंट वाले गाने हैं उनमें एक सीरियसनेस होती है. एंड इस गाने की खूबी ये है कि इट डज स्पीक अबाउट प्रॉमिस, बट इट्स अ वेरी ब्रीजी, वेरी सूदिंग, वेरी हैप्पी काइंड ऑफ सॉन्ग. एंड इट जस्ट मेक्स मी थिंक अबाउट लव एज अ वेरी नॉन कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग. टू पीपल हु आर इन लव सिटिंग विद ईच अदर, नॉट डूइंग समथिंग extraordinary, feeling love in the simplest of moment, looking into each other's eyes and just expressing love unspoken.
and the song is playing in the background and it's just complementing their feelings. देखा मैंने तुझको तो मुझे ऐसा लगा बरसों का सोया हुआ प्यार मेरा जगा तू ही दिया मैं हूँ बाती आजा मेरे जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी कसमें वादे निभाएंगे हम मिलते रहेंगे जन्म जन्म कसमें वादे निभाएंगे हम मिलते रहेंगे जन्म जन्म चेहरों से हो अनजाने हम दिल को पहचाने कभी प्यार नहीं मरता है पागल प्रेमी ही जाने आ जाती है लब पे खुद ही भूली बिसरी बात कसमें वादे निभाएंगे हम मिलते रहेंगे जन्म जन्म एक कहानी जो मुझे अभी याद आ रही है तुरंत, अमिताभ बच्चन साहब का गाना था और गाना था पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। जब गाना उन्होंने लिख लिया तब उन्होंने कहा कि प्रकाश मेहरा को बुलाओ जो उसके डायरेक्टर थे। तो बोले जो तू इन्हें गाना ये अनजान मुझे लिखवा रहा है ये तो मुझे 6 महीने में गाना पड़ेगा, ये गाना खत्म ही नहीं हो रहा है, ये शुरू है चलता ही जा रहा है। बुजुर्गों ने फरमाया बुजुर्गों अरे भाई कितना गाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि दादा देखिए छोटा गाना मैं आपसे गवा नहीं सकता हूँ। पहला कारण तो ये है कि मेरा हीरो बहुत लंबा है, दूसरी बात यह है कि आप बहुत लंबा पैसा लेते हो, तो इतना पैसा आप लेते हो उसके लिए मैं 4 लाइन के लिए आपको बुलाऊं तो ये अच्छा चल 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 चल। उतने में थोड़ी देर बाद बच्चन साहब भी वहां आ गए। अब अमित आ गया बोले हाँ, बोले अब गाता हूँ। मेरा मूड बन गया उसको देख के। अमिताभ बच्चन ने कहा कि दादा ये जो आप परफॉर्मेंस जो सिंगिंग में देते हो ना, इसका एक्सप्रेशन देने में मेरी जान निकल जाती है। और आप यकीन करो इतना बड़ा गाना मैंने कॉन्सर्ट में भी सिंगर्स को रिहर्स करते हुए देखा है, एक बार में पूरा गाना गाना इट वाज लाइक अ इम्पॉसिबल टास्क। His voice is completely full-throated, rounded, warm, descriptive, full of expression, and so many other words, yes? Like a strong, strong glass of wine or a wonderful single malt. You can't compare that with anybody else, right? And Kishore Kumar will always be remembered as a voice which is incomparable, a voice that sets everything apart. That warmth and the romanticism in his voice, just too marvelous. Kishore Kumar for me is to music what Sachin Tendulkar is to cricket. The moment you watch Sachin Tendulkar bat in an old video, there's a smile on the face. The moment you listen to a Kishore Kumar song, वही मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आती है। किशोर कुमार यानी हैप्पीनेस।